Hey, hello everyone. Uh, Welcome to the session. Let's get started. I have conveyed all your concerns to the team, and maybe you have someone from team in the session also today. You may raise your questions in the chat as well. Okay. I think someone has joined, if I'm not wrong. You can just raise your questions in the chat as well. Uh, he will take it forward. Okay. And though you are facing difficulties with SQL, it is said that if required, you'll get some extra classes on SQL as well. Okay, that will be taken care as well. So I've conveyed basically whatever your concerns were there, and I've shared the screenshots as well to the team. Uh, so it will be resolved. I hope everybody is here. Those who raised concerns yesterday. Uh, if yes, please let me know in the chat so that just to tell you that I've helped you out in this regard as well. Also, let me know I'm audible to you people or not. And also, we're going to start. I think we have started Power BI in the last session. In this session, we are going to continue learning. कौन connect हुआ है सर? एक मिनट. आप अपने मैसेज डाल दो. कनेक्ट हुए हैं है बंदा जो कनेक्ट हुआ है. You just send your messages. He'll take it forward. Okay. You don't worry about it. Okay. There's a already someone here who is looking after your queries and questions and everything. Okay. Hello. Yeah. Yes, Ajaj. What Second, is an issue? they raised some issues in the last class Okay. regarding SQL and I think regarding the project and Python project and SQL project. I think you can hear from them as well. Just guys, Yes, those who please. have concerns, you can just raise your concerns here and it will be taken forward. Okay. हेलो Yes, sure. Please. सर शुएब दिस साइड Yes, yes. हाँ मैं मेरा जो है ना एक्चुअली एसक्यूएल पाइथन पावर बीआई और एक्सेल और लगभग जितने भी सारे सेशंस हुए हैं ना सबका असाइनमेंट जो है ना मैंने बहुत सारी कंप्लेंट रेज किया है उसके रिगार्डिंग Okay. बट कैसा ना कोई हेल्प किया नहीं है और ना ही मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में कोई भी जानकारी मेल पे या फिर कॉल पे वगैरह दी नहीं गई है मैंने बहुत बार कंप्लेंट रेज किया उसके बारे में Okay. अभी क्या कंसर्न क्या है आपका एग्जैक्ट? व्हाट इज द मेरा कंसर्न नाउ? कंसर्न है इसकी एसक्यूएल वगैरह का और एसक्यूएल जितना भी छूटा है ना उन सबका रीशेड्यूल किया जाए और असाइनमेंट के लिए न्यू सबमिशन डेट दी जाए Okay, so you all want to new date for the submission or just only you? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ऐसा कंसर्न है आप पूछ Yes, सकते हैं sir. बाकी उससे It's same with me, Regarding sir. which project you want to new submission date? I mean, which That's subject same. project? एसक्यूएल पाइथन एक्सेल एंड व्हाट विल बी left Okay. Okay. I'll forward the message Sir, also to the. Hello, sir. hello sir, hello sir, hello sir. Yes, one by one, please. One by one, please. Yes, Prajwal, please. एक्सेल रिलेटेड क्वेरी मैंने दो बार शेयर किए है क्वेरी फॉर्म में. सो रीइवैल्यूएशन मार्क चाहिए था क्योंकि उन्होंने जो मार्क दिए मैंने कंप्लीट आंसर किए एवरी स्टेप के. सो अभी तक ओके, बट उसका कैसे रिप्लाई होता नहीं है ना, आया. आपको वहाँ पे कुछ फीडबैक आया होगा तो उसके रिलेटेड आप एक बार फीडबैक फाइल चेक कर लेना नहीं कि क्या नहीं, दो feedback बार मैंने क्वेरी सेंड किया लेकिन रीइवैल्यूएशन नहीं आया. ओके, तो आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के मार्क एक्सेल रिलेटेड एक्सेल क्वेरी है हाँ, मार्क रिलेटेड क्वेरी है रीइवैल्यूएशन. मैंने एक्सेल सब का ना? कंप्लीट किया. हाँ, एक्सेल का सब सब ओके आंसर कंप्लीट किए. ओके ओके, एवरेज I'll प्रीमियम. फॉरवर्ड द मैसेज एंड देन ओके. इंस्ट्रक्टर और विल चेक इट अगेन. एसक्यूएल का जो लेक्चर है ना वो को उन्होंने वास्ट लिया है. सो हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ना इसलिए ओके रिटर्न हो सकता है वो अलग ट्रेनर तो अच्छा होता. कोई अच्छा ट्रेनर ओके एसक्यूएल ओके का. Okay, I'll talk to the talk to the team and then I'll ओके ठीक है. let you know if it is possible. ठीक Then है. we ओके can arrange the session. Okay. Don't worry ओके. about it. We'll cover हाँ. cover the SQL. Don't worry about it. ओके. सर प्लीज थोड़ा फर्स्ट प्रायोरिटी में से करिए बहुत लोग बहुत सारे फैकल्टी ऐसे कहती है बट कुछ रिस्पॉन्स है ना बहुत जल्द आता नहीं है
ओके ओके ठीक एक्चुअली है। ऐसा होता है ना कि हम हमारी जब तक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तब तक, जब तक आपका रेजोल्यूशन आता है आपकी हाँ, तरफ से। ठीक है शोएब, प्लीज। मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। इट मीन्स कि हम इसको सॉर्ट करेंगे जल्दी, ठीक है। जी। हाँ सर, आई एम जयेश सर दिस साइड। सर सेम क्वेरी एक्चुअली मेरा भी है। सीक्वल के लेक्चर्स को लेकर है एक्चुअली सर। वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं था प्रीवियसली जो लेक्चर सर दे रहे थे, तो सर वो ओके समझ में आया नहीं। और उसके बाद डायरेक्ट वो प्रोजेक्ट आ गया, तो प्रोजेक्ट करते भी नहीं बना। और सर ना मेन प्रॉब्लम सर वो हुआ कि हमने एक क्वेरी फोरम पे क्वेरी रेज किया, देन हेल्प हेल्प डेस्क नंबर पे भी कॉल किया, मतलब काफी लोगों ने। बट ओके। सर वहां से ना रिप्लाई नहीं आ रहा, तो सर ना थोड़ा सा ट्रस्ट इशू आ रहा है सर कि नहीं नहीं जयेश, क्या होता है ना कि कभी कभी सपोज अगर कोई एक पर्सन असाइन किया है, ठीक है, उनको सपोज यस असाइन किया है, तो कभी कभी उनका लीव पे होता है, तो मतलब रिप्लाई जो होता है आपका तो आगे पीछे होता है, बट ऐसा नहीं कि आपको रिप्लाई आएगा ही नहीं। और जितना सपोज मैसेज फॉरवर्ड किया होता है, या जितना हमको टीम को एक क्या बोलते हैं उसको, एसओपी होती है, उसके रिगार्डिंग मैसेज आ जाते हैं। पर अगर कोई कंसर्न, जैसे कि अभी आपने बताया ना कि एसक्यूएल का, अभी देखो एसक्यूएल का कितने लोगों को कंसर्न है, कम से कम 4-5 लोग तो अभी मुझसे बात कर रहे हैं, उनको कंसर्न है, तो ये प्रायोरिटी पे जाएगा कि बाबा एसक्यूएल पे कंसर्न है, ठीक है। तो ओके। एसक्यूएल का मैं सॉर्ट कर दूंगा, मतलब बात करूंगा हम टीम से या सीनियर से, और वो हो जाएगा, ठीक तो है। सर सर एक चीज मेरे एक साथ एक और और चीज मेरे वो साथ भी थी। अच्छा साहब बहुत सारे लोग हैं। हाँ, एक चीज जो हमारा काउंसलर था जिसने हमारी काउंसलिंग किया था, जब ओके। मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोगों के जितने भी काउंसलर थे सारे के नंबर जो ना ऑफ आ रहे हैं। तो हम कैसे अच्छा हम अच्छा। डायरेक्ट टू कांटेक्ट नहीं कर पा रहे उनसे, और क्वेरी फोरम पे रिप्लाई ना बहुत लेट आता है। सर लास्ट 1 मंथ से मैं कॉल ट्राई कर रहा हूँ बट कॉल कोई पिक ही नहीं कर रहा सेम है जो नेक्स्ट सेम फ्रॉम माय साइड सर, माय क्वेरी पे भी कोई काउंसलर नेम इज रिस्पॉन्ड नहीं आया प्रतिभा। वो Yes, sir, डेढ़ same महीने issue. उसका बता रहे नंबर थे। है ना Same बंद आ रहा issue, है। sir. Hello. बस ओके ओके सीक्वल ओके, का तो तो लेक्चर मेजरली अच्छे इशू, से हुआ ही सुनो नहीं। सुनो वो सुनो, बस करके मेजरली इशू चले तो गए, ये है कि प्रैक्टिकली किसी आपका को आपके एक्सप्लेन नहीं काउंसलर किया। से कांटेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। आपका ये इशू है कि आपका आपके काउंसलर से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, वही है ना मेन और तो हाँ, सेकंड काउंसलर सर वो ने सीक्वल का वो किया था, एसक्यूएल के कमिट किया था लेक्चर। कि लास्ट तक साथ रहेंगे, बट वो जैसे ही एडमिशन हुआ मेरा हाँ वो फिर सेम, चले गए। मेरा भी एडमिशन जैसा हुआ ना सर वैसे ही, मतलब उनके आफ्टर 1 वीक उनका नंबर बनाने लगा, फिर एक दो बार चालू आया तो बोले वो लीव पे थे, फिर उस मेडिकल इसके चक्कर में ओके। वो छुट्टी पे, तब से उनका फोन हाँ, ही बंद जो आ रहा है। आपकी जो प्रतिभा मैम जो आपका काउंसलर थे ना, तो ऑनेस्टली यस। उनका इशू था वो, अभी भी वो लीव पे ही है, मतलब उनका ये इशू नहीं, कि कंसर्न प्रतिभा तो सर आपको था। सेकेंडरी, उनसे पहले मेरा आरवा करके एक, थे, उनका भी सेम ठीक है चीज ठीक हुआ है। ना सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी अभी मेरा तो ये आपको कहना होगा कि आपका जो भी कंसर्न है, ठीक है, आप जैसे एजाज ने कहा आपको कि आप एक बार चार्ट में दे दो, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तब क्या आपका सेशन भी चालू रहे, और आपका जो सपोज कंसर्न है वो मुझे चार्ट में समझ में आए, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा और उसको सॉर्ट करने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द, ठीक है। हेलो। अभी हेलो। अभी आपका सेशन होना भी जरूरी है, ठीक है। या जी हाँ सर, सर। वही एक चीज थी सर, बाकी और हाँ सर कुछ नहीं, लास्ट बाकी पढ़ाई वगैरह सब यस, ठीक चल रही है। ठीक है सर राहुल। लास्ट क्वेश्चन है। हेलो। हाँ राहुल बोलिए। यस सर, हमने जो है ना अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है बिकॉज उसमें कुछ टॉपिक एसक्यूएल के, राइट। हमारा एसक्यूएल का जो भी ठीक है। टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो हम हाँ प्रोजेक्ट भी कैसे कंप्लीट करेंगे। हम कहीं ना कहीं से सर्च करके वो कर लेंगे, बट हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो प्रोजेक्ट सबमिट करने का मतलब क्या है। ठीक है, इसलिए जैसे Yes, कि sir. आपको इस, सुनो, Same अभी issue. मोर इसलिए ऑफ द स्टूडेंट का ऐसा कंसर्न है कि एसक्यूएल के रिलेटेड, ठीक है। तो सर सर विल ट्राई टू एसक्यूएल का अरेंज द एसक्यूएल, आई विल ट्राई टू अरेंज द एक्स्ट्रा सेशन फॉर नो। एसक्यूएल, डोंट वरी अबाउट यस इट, ओके। सर बिकॉज एसक्यूएल के सर असाइनमेंट ही बिकॉज नहीं दिए उन्होंने। सर बिकॉज सर बिकॉज क्यों पता है आपको, जब एसक्यूएल स्टार्ट हुआ था ना 3 लेक्चर में पूरा एसक्यूएल खत्म हो गया। वो टाइम पे हम पाइथन प्रोजेक्ट पे भी ध्यान दे रहे थे, और उस सर जो थे ना वो अच्छे से कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर कर रहे थे, राइट। ओके और हम ओके तो ओके जो उनसे मतलब पूछ भी नहीं पा रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो म्यूट करके रखते थे, एंड में अनम्यूट करते थे। एंड में जो हम स्टार्टिंग में पढ़े वो थोड़ा दिमाग से निकल जाता था कि हम हमारा क्वेश्चन क्या था, डाउट क्या था, हम ठीक है पूछ नहीं राहुल, पाते थे। सर इसलिए मैं आपको सबको एक यही बोल रहा हूँ कि आपका एक्स्ट्रा सेशन का शेड्यूल करने का एक टाइम देख के हम यस उसको प्लीज। थोड़ा मैनेज कर लेंगे, ठीक है। उसको थोड़ा हो जी सकता है जी कि चलेगा। डिले हो या थोड़ा टाइम लगे उस चीज को, क्योंकि कैसे होता है ना, बैच होता है, तो फिर कभी कभी अभी सपोज एक एग्जांपल के तौर पे एजाज अगर मतलब अवेलेबल है किसी सेशन में किसी टाइम पे, तो हो सकता है कि आप स्टूडेंट अवेलेबल नहीं हो सकता है कि वो सब कुछ मैनेज करके हम सेशन को अटेंड, मतलब क्या बोलते, शेड्यूल करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा हमें टाइम चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली सर।
ठीक है, तो सर अभी हम मुझे सभी ये चैट में कहिए भेज कि दो अपनी अपनी क्वेरी, आप उसको रिजॉल्व कर दीजिए, ऐसा कर हाँ, लेते हैं। वही वही हाँ कह रहा हूँ चैट मैं में कि भेज। आपको, ठीक है, आप सर थोड़ा आप आपका अपना जो भी कांटेक्ट क्वेरी, नंबर डाल दीजिए ना, ताकि हम कांटेक्ट कर सके डायरेक्ट। आप आपका जो भी क्वेरी है वो आप चैट में दे दीजिए। और अभी सेशन कंटिन्यू करना जरूरी है क्योंकि अभी भी 15 मिनट अभी हो गए, ठीक है, तो सेशन भी यस यस जरूरी है। सर, यस सर, और यस मेरा सर, यस मुझे सर। आपका जो कंसर्न है वो समझ में आया, मैं उसको जल्दी सॉर्ट करने के लिए हम कोशिश करेंगे, ठीक है, सर मेरा और करेंगे ही, सीक्वल कोशिश तो सीक्वल करेंगे इस एक्सेल चीज़ को। पाइथन और पावर गाइस, बीआई। गाइस लास्ट में बात करते हैं, गाइस लास्ट में बात करते हैं, ना टाइम वेस्ट हो रहा है, लास्ट में हेलो, बात करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जस्ट मिनट। यस अनामिका। ठीक सर। सर मेरा क्या है कि मेरा डैशबोर्ड नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरा जो काउंसलर था वो 1 मंथ बाद उन्होंने मेरे को बताया नहीं। फर्स्ट पेमेंट जो थी उन्होंने ले ली थी, सेकंड पेमेंट उन्होंने मेरे को बताया नहीं समथिंग, और फिर उनका स्विच ऑफ हो गया मोबाइल लाइन में। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया तो वो भी सारे स्विच ऑफ थे। ओके, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं किससे बात करूं, ठीक है, जो भी क्योंकि कंसर्न है कोई आप कांटेक्ट नंबर नहीं है मेरे पास, जो है वो लग नहीं रहा है या फिर स्विच ऑफ टोन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक अभी है, ये तो क्लासेस के मेरे को सेशन मेल पे भी नहीं रिसीव हुए हैं, ये तो मेरे क्लासमेट ने मेरे को दिया है। सो ऐसा ठीक है आपका सेम इशू है देख- सर, सबका एक ही इशू है। अगर आप देखेंगे तो सबके सिमिलर ही हैं, सर ठीक, मेरे सेम नहीं होते हैं। जॉब ये उन्होंने बोला मुझे कि मैं लीव पे हूँ। स्टार्टिंग 1 मंथ तो 1 वीक तो उन्होंने बोला कि मैं लीव पे हूँ। उसके बाद उनका कोई कॉल नहीं लगा, और अर्जुन है वो रिमाइंडर डेस्क के कॉल उठाता है, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने शायद जॉब छोड़ दी है। और दूसरे भी एक इन्वॉल्व थे मुझे एनरोल कराने में, सौरभ करके उनका नाम था। तो वो बोल रहे कि वो तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट से हैं, इसकी वजह से वो कॉल नहीं रिसीव करेंगे आपका। ठीक है, जो भी आपके कंसर्न है ना वो मैंने नोट डाउन कर लिए। वही बोल रहा हूँ, आपका किरण, सेशन कंटिन्यू होने दो, उसको हम जो है जल्दी से जल्दी सॉर्ट करेंगे हम उसको, ठीक है, अभी हेलो सेशन जरूरी किरण, है। किरण सर। यस, हेलो सर, एक मेरा कंसर्न है कि मैंने लगभग 4 से 5 बार अभी इसके बारे में क्वेरी डाली है कि मेरे जो सेशन है ना वो डैशबोर्ड पे अब्सेंट दिखाते हैं। वो एक बार मैंने क्वेरी डाली तो वो आ जाते एब्सेंटी प्रेजेंट। का प्रशांत देखो, एब्सेंटी का आप उतना स्ट्रेस मत लिया करो। एब्सेंटी की कभी कभी क्या होता है ना कि आप कभी सपोज लॉग आउट लॉग इन होते हैं ना, तो उस टाइम पे ब्रेक होता है, ठीक है, तो जब भी अच्छा आपका मैं क्वेरी आता है तब हम पूरा आपका उसमें रिकॉर्ड फिर चेक से वही करके इश्यू आ फिर गया। से हम प्रेजेंट लगा देते हैं। उसका एब्सेंटी का इतना कुछ इशू नहीं है, ठीक है, जो बाकी के इशू है ये इंपॉर्टेंट है और आपका भी इंपॉर्टेंट है, बट वो सॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ओके ओके किरण, थैंक यू। व्हाट आई एम सेइंग कि तुम लोग क्या करो, आप चैट में अपना नाम लिखो और अपना कंसर्न लिखो, किरण ले लेंगे, फिर इट विल बी सॉर्टेड आउट। ओके, फिर हाँ, इट हम विल बी सॉर्टेड, सेशन इट विल स्टार्ट कर कैन, लेते हैं। अपने नाम के साथ प्लीज ना प्लीज। अपना ये लिख लो, तो वो कॉपी पेस्ट करके मतलब आगे उसको क्या करना है कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, लेट्स हाँ गेट हाँ, वही वही, स्टार्टेड द सेशन नाउ। यस 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 प्लीज। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ। Okay, guys, so no more queries now. You have to just put it in the chat, okay? So that it's helpful for all of us. Okay. I hope my screen is visible to you people. You can let me know in the chat, okay? You can just let me know in the chat, sir. whatever interaction. And if you feel anything is of very important, anything is very important, then you can just let me know. I'll unmute you as well, okay? For now, I'm just muting all of you, okay? Just that we want the session to be smooth. That's the only reason we mute the participants. Otherwise, nothing more than that. Okay, you can just let me in the chat to unmute you, then I'll do it for sure. Okay, so chalo, let's get started now. Okay, so what we have done in the previous session was we started with the Power BI, and I've introduced to you all of these different sections in Power BI and what are their use cases and why do we use them, and what is the end goal and everything. मतलब क्यों, why Power BI after all, okay? Power BI use करते क्यों हैं, and what is the end goal, क्या हम अचीव करना चाह रहे हैं Power BI यूज करके, and what are the different services provided by the Power BI. Power BI itself is a suite, okay?
just like your MS Office suite. It's a simple suite like MS Office, where you have multiple apps. In Power BI also you have multiple app. We are exploring one such app, which is Power BI Desktop. Desktop is like one stop solution for multiple things. For example, data collect करना है, data analyze करना है, transform करना है, visualize करना है, report build करनी है. So it's a one stop solution for multiple BI tasks. Okay, BI क्या होता है? Business intelligence. Business का data आप लो और meaningful insights उससे निकालो और help the business grow. That's the make the business more intelligent, in the sense like their decision making process intelligent. Okay, there's like a lot of similarities in BI and data analytics. Okay, though uh, quite interchangeably used, but it's not that. Okay, so in this session, what are we going to do is we are going to bring some data set into the environment, into the Power BI, and then we will explore some visualization. I told you yesterday also that visualization is the last part, since it's a little bit exciting, since it shows up very quickly and you look at the output very quickly. So that's why it's added in the first few classes. तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हम यहाँ पे विजुअल्स को कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, इंडिविजुअली देखेंगे, एंड देन वी विल कलेक्टिवली यूज देम टू बिल्ड अ रिपोर्ट. ठीक है. I have also shown you a report in the previous class. What is a report and why do we build a report and what is the end goal of the report? Okay, so now we will get started with the report. So I mean, like the visualization. I've shared the data set. While the class is on, you have to observe this. If you find time, you can just in the meantime, you can also replicate what I am doing or copy. मतलब मेरे को copy भी कर सकते हो तो करो. If you feel that you are missing out information, you're missing out the lecture, don't do it. You can later part you can do this as well. Okay, all right. तो जैसे मैंने वो कल वाला जो डेटा आपको दिया था ग्लोबल सुपर स्टोर का, वही डेटा मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ. ठीक है. सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू एक्सप्लोर बट वी विल गो ग्रेजुअली. ओके, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर्स का एक शीट है वो डेटा सेट में, हम उसको लोड कर रहे हैं. इट टेक्स लिटिल टाइम बेस्ड ऑन योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कितना फास्ट आपका सिस्टम है उस हिसाब से. मेरा तो 8 GB पे चल रहा है तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है. Otherwise, if you have 16 GB or 16 plus, it'll be it'll be doing it much faster. All right, so we have the data set and I've shown you what are these what these things are. Basically, these are the column names. Okay, and these are the visual and this is the filter pane. Okay, so now we are worried about the visualization today as well as this particular data thing, but it is not that randomly you get started with this. Okay, always remember, you are learning data analytics, data science, or AI, whatever field. The first and foremost thing is that as soon as you get the data set, the first thing, सबसे पहली चीज वो होती है कि आप डेटा डिक्शनरी अंडरस्टैंड करो. व्हाट इज अ डेटा डिक्शनरी? ओके, डेटा डिक्शनरी वो होती हैं जो ये सारे कॉलम के नेम्स होते हैं. ओके, डेटा डिक्शनरी आपको पूरा डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. It gives you the entire information about the data. Or first thing is that you need to know the data dictionary. Okay. Next thing, again, let me just complete this data dictionary part only. Data dictionary is nothing but the definition of your column name. Okay, dictionary gives you what? It gives you the meaning of this particular thing. So the name of the column, okay, what does the name of the column mean with respect to this data? Okay, एक और बात कि first and foremost thing is that कि you need to know the domain also. मतलब कौन से बिजनेस से आपका डेटा आ रहा है. राइट, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू दिस डेटा सेट. इट्स अ सुपर स्टोर डेटा. मतलब ये एक ऐसे समझो ये ई कॉमर्स डेटा है. ऑनलाइन स्टोर होते हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन और XYZ, उस तरह का ये डेटा है. अब वैसे बिजनेसेस में क्या होता है,
बहुत सारा इंफॉर्मेशन वो स्टोर करते हैं, जैसे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन वो रखते हैं, कस्टमर का इंफॉर्मेशन वो रखते हैं, उनके कोई सेंटर्स हैं तो उनका इंफॉर्मेशन रखते हैं, उनके कोई एम्प्लॉयज है तो उनका उनका इंफॉर्मेशन रखते हैं। सो दे स्टोर लॉट ऑफ डेटा। पर इट जस्ट दैट कि वो सारा डेटा एक टेबल में नहीं रखते। ये क्या आप देख रहे हैं ना, ये टेबल है, एक ही टेबल में पूरा बिजनेस का डेटा कोई भी नहीं रखता। ओके, उसके लिए आपको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के वो डीबीएमएस की जो क्लासेस होती हैं वो समझना इंपॉर्टेंट होता है, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस। तो डेटा इन सच अ वे डिजाइन किया जाता है, इट्स डिजाइन इन सच अ वे दैट ओके different sections of an organization or different categories of an organization have different tables. For example, क्या होता है ई कॉमर्स में, what happens in e-commerce, people place orders, okay, and people come to the particular website and they place order, and based on that the order is processed and the information about that particular order is stored. सुपर स्टोर में अगर आप देखोगे कि तो वहाँ पे तीन शीट्स हैं। एक तो शीट है आपका रिटर्न शीट, एक है आपका ऑर्डर शीट, और एक है आपका पीपल। पीपल में मोस्टली इट इज़ लाइक लोगों का डिटेल है, जो कि मतलब ऐसे कह लो कि उस पर्टिकुलर रीजन में कौन उसको देख रहा है, कौन संभाल रहा है, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर और समथिंग लाइक दैट। रिटर्न में सी ई कॉमर्स में क्या होता है कि व्हेन यू ऑर्डर एंड यू डोंट लाइक द प्रोडक्ट यू रिटर्न, सो किस कौन से प्रोडक्ट रिटर्न हुए उसका इंफॉर्मेशन है। ऑर्डर्स में ऑर्डर्स में सारी डिटेल्स हैं ऑर्डर्स को लेकर। किसी बंदे ने ऑर्डर किया, मतलब उसको क्या करते हैं कि दे असाइन लॉट ऑफ यूनिक आईडीज। मतलब एक एक तो होता है रो आईडी, ओके, एक तो ये है रो आईडी, मतलब इस रो के हिसाब से इन्होंने आईडी दे रखा है, विच इज टू ग्रेटर एक्सटेंट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ओके, ऑर्डर आईडी यस मैटर्स। मतलब जैसे ही किसी बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया ई कॉमर्स साइट पे, उसका उन्होंने एक ऑर्डर असाइन कर दिया, ऑर्डर आईडी। जैसे ये है ES 2013, मतलब ईयर यहाँ पे बता रहे हैं, इसका कुछ कोड होगा, रीजन वाला कुछ कोड होगा, फिर कुछ नंबर हैं, फिर कुछ नंबर हैं। सो इट्स अ बेसिकली अल्फा न्यूमरिक थिंग, और समटाइम्स स्पेशल कैरेक्टर्स ऑल्सो। ओके, तो एक ऑर्डर आईडी होता है, ऑर्डर डेट होता है कि मतलब किस दिन ये ऑर्डर हुआ, शिप डेट किस दिन इसको शिप किया गया कंपनी से। ओके, शिप मोड, कौन सा शिप मोड उन्होंने प्रेफर किया। यहाँ पे आप इफ यू जस्ट लुक एट दिस एरो मार्क, मतलब इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा ये पर्टिकुलर डेटा सेट के बारे, डेटा कॉलम के बारे में। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे तीन तरह की कैटेगरी हैं। किसी भी कंपनी में कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे फर्स्ट क्लास है, सेम डे है, सेकंड क्लास है, स्टैंडर्ड क्लास है, ठीक है। तीन नहीं, चार, सॉरी। तो चार तरह की कैटेगरी हैं। तो कोई भी कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करेगा, इन्हीं चार में से किसी को उसको सेलेक्ट करना होगा। समझ रहे हो? तो ओके, दिस इज वन। कस्टमर आईडी, देखो ये है ऑर्डर आईडी, ठीक है। ये है रो आईडी, मतलब जब ये रो आईडी जब काम आएगा, जब जब ये रिकॉर्ड डेटा रिकॉर्ड हो रहा होगा। ऑर्डर आईडी, जैसे ही ऑर्डर हुआ उसका एक यूनिक ऑर्डर आईडी बन जाएगा, ताकि उसको ट्रैक करना आसान हो जाए। कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो आप वो पूछ लेना ऑर्डर आईडी क्या है, ये आईडी क्या है, वो आईडी क्या है, तो उसके लिए होता है। तो ऑर्डर डेट डेफिनेटली इट्स रिकॉर्डेड, शिप डेट, ओके। नाउ अब यहाँ पे शिप मोड, शिप मोड में मैंने कहा कि इतने सारे शिप मोड ये यूज़ कर रहे हैं। कस्टमर आईडी, हर कस्टमर को इन्होंने एक यूनिक आईडी दिया होगा। डन। तो देखो यहाँ पे कितने सारे कस्टमर्स हैं, उनके सारे के ये आईडीज होते हैं, ठीक है। और कस्टमर नेम, यस ऑब्वियस, कस्टमर का नेम भी होता होगा। सेगमेंट, ओके, मतलब ऐसे समझो कि कौन से सेगमेंट से कस्टमर बिलोंग करता है, या कौन से सेगमेंट वाला वो प्रोडक्ट ले रहा है। जैसे कंज्यूमर सेगमेंट है, कॉरपोरेट है, या होम ऑफिस है, ठीक है। पोस्टल कोड, यहाँ पे वो कस्टमर का एड्रेस होगा, सिटी होगा, स्टेट, कंट्री होगा, रीजन। कंपनीज अपने सारे ये क्या कहते हैं उसको, ऑपरेशन को बहुत सारे रीजन्स में डिवाइड करते हैं, फिर मार्केट में डिवाइड करते हैं, कंट्रीज पे डिवाइड करते हैं। सो रीजन्स आर दीज रीजन, ओके। let's take the super stories like present all over the world, like such as like Amazon, where they are having their global presence। तो यहाँ पे आप रीजन देखोगे तो इतने सारे रीजन्स यहाँ पे हैं, ठीक है।
एक कनाडा रीजन है, कैरिबियन, जैसे ही किसी ने ऑर्डर किया तो उसका वो रीजन वहाँ पे रिकॉर्ड हो रखा है। ओके, मार्केट मतलब कौन से मार्केट से वो आ रहा है, मतलब फर्दर जैसे ऐसे समझ लो कि पहले उन्होंने कॉन्टिनेंट बनाया, इसको मार्केट कह लो, फिर उसमें रीजन बनाया कि मतलब यूरोप में उन्होंने फिर रीजन बनाए कि वेस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप है, इस तरह उन्होंने किया। अफ्रीका में तो मतलब मल्टीपल रीजन्स बना लिए, लैटिन अमेरिका में बना लिए, यूएस कनाडा रीजन में बना लिए, एशिया पैसिफिक में बना लिए। तो फिर उन्होंने प्रोडक्ट आईडी, ऑब्वियस है कि मतलब कोई सा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो उसका भी कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना। तो यहाँ तक तो आप देख रहे थे कि कस्टमर का बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा था, यहाँ से कुछ प्रोडक्ट का शायद निकल के आए। तो प्रोडक्ट आईडी होगा, कौन सा प्रोडक्ट, किस कैटेगरी का वो प्रोडक्ट है, मतलब ऑफिस सप्लाई। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे 3 तरह की कैटेगरी मिल रहे हैं, या तो फर्नीचर हो सकता है, या ऑफिस सप्लाई हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है। ओके, ये हो गया कैटेगरी। सब कैटेगरी मतलब ऑफिस सप्लाई में क्या है, आर्ट है, मतलब बाइंडर्स है, बुकर्स है, वो सारी चीज़ें हैं। ओके, तो फिर अगर ये है फर्नीचर है तो क्या है, चेयर है, टेबल है, कुछ भी हो सकता है, टेबल कुछ भी हो सकता है। फिर देन व्हाट इज अनदर कैटेगरी, अदर कैटेगरी इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है, फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये एक बड़ी कैटेगरी है, इसकी एक सब कैटेगरी है। ऑफिस सप्लाई के अंदर कुछ ना कैटेगरी होंगे। जैसे मैं अगर इसको यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, जैसे फर्नीचर को रखता हूँ, तो इट बिकम्स इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कितने सब कैटेगरी फर्नीचर में है। देखो रहे हो कि बुक केस है, चेयर्स एंड फर्निशिंग एंड टेबल्स, ये सारी इसमें आते हैं। ओके, तो अब मैं इसको यहाँ पे जाके इसको ऑफिस सप्लाई करता हूँ, तो आई कैन सी कि ये इतने सारे जो कैटेगरीज हैं वो इसके अंदर आते हैं ऑफिस सप्लाईज में, कि अप्लायंस है, आर्ट है, बाइंडर्स है। ठीक है, तो फिर वैसी तरह आप टेक्नोलॉजी को भी देख सकते हो। ठीक है, तो आई जस्ट सेलेक्ट ऑल। ओके, प्रोडक्ट का नाम होगा, ठीक है, सेल्स होगा, मतलब ये ऑर्डर जो हुआ, इसने 8 क्वांटिटी के स्केच पैड मंगवाए, जिसका $414 तकरीबन वो ये हुआ सेल का। तो इस प्रोडक्ट में, इस ऑर्डर पे कोई डिस्काउंट नहीं लगा। प्रॉफिट वो होता है कि सेल्स का सारा खर्चा निकालने के बाद से इतना पैसे आपको मिले, शिपिंग में इतना गया, उसके बाद जो वो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट का रियल वैल्यू कुछ होता है। जैसे आपने 50,000 का मोबाइल खरीदा दुकान से, तो दुकान वाला तो बहुत सारे खर्चे उसमें निकालेगा ना, तो कि मतलब वो कंपनी को भी तो 30-35 हज़ार दे रहा होगा, और टैक्स दे रहा होगा, और न जाने क्या क्या। उसके बाद जो आपका उसका प्रॉफिट बचता है, समझो 5,000 बचते हैं 50,000 के मोबाइल में, तो वो प्रॉफिट होता है। तो सेल्स और प्रॉफिट के अंदर वाला डिफरेंस आपको समझना चाहिए। शिपिंग कॉस्ट भी लगा होगा उस पर। ठीक है, तो ऑर्डर प्रियोरिटी, ऑर्डर प्रियोरिटी ऑल्सो मैटर करता है कि मतलब कौन से तरह का ऑर्डर प्रियोरिटी यूज़ किया है कस्टमर ने। कंपनी ने ऑलमोस्ट लाइक 1 2 3 4 4 तरह के ऑर्डर प्रियोरिटीज कंपनी ने दे रखे हैं, कि क्रिटिकल होगा, या हाई होगा, लो होगा, मीडियम। तो ये जो भी मैं डिस्कशन अभी 10 से 15 मिनट तक कर रहा था, ये अंडरस्टैंडिंग डेटा के बारे में, ये यहाँ पे ही नहीं एप्लीकेबल होती। कहाँ पे? It's not just applicable in the Power BI. It's applicable even if you are doing data analysis and with the Python. If you are doing analysis in SQL, generally we don't use for analysis, but wherever you are doing your analysis, data dictionary and understanding the data matters a lot. I can say, moreover, it is the hero part. तुमको अगर डेटा नहीं समझ में आएगा, यू कैनॉट मेक अ रिपोर्ट आउट ऑफ इट। तुमको अगर डेटा समझ में नहीं आ रहा है, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड डेटा, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डोमेन, यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ गुड रिपोर्ट। मैं उसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। समझो मैंने आपको आईपीएल का डेटा दिया। ओके, आईपीएल का डोमेन क्या है? क्रिकेट है। ठीक है, क्रिकेट से वो रिलेटेड है डेटा। ठीक है, तो मैंने आपको दिया आईपीएल का डेटा, और मैंने एक जर्मनी के सिटीजन को पकड़ा, वो भी एक डेटा एनालिसिस है, वो भी पावर बीआई की रिपोर्ट्स बनाते हैं, मैंने उसको भी आईपीएल का डेटा दिया। अब आपको तो पता है कि आईपीएल में क्या होता है, कितने मैच मतलब क्या होता है, विकेट मतलब क्या होता है, बॉलिंग क्या होता है, बैटिंग,
लेकिन जर्मनी के सिटीजन को पता नहीं है कि वो आई क्रिकेट मतलब क्या होता है। जनरली उनको पता नहीं होता क्योंकि वो ज़्यादातर फुटबॉल खेलते हैं यूरोपियन कंट्रीज में। तो कौन बेटर एनालिसिस कर पाएगा, आप कर पाओगे या वो कर पाएगा? डेफिनेटली आप कर पाओगे। गिवन अगर इफ यू आर लर्निंग अ टूल, पावर बीआई इज अ टूल विच इज हेल्पिंग यू डू ऑल दीज थिंग्स, बट योर एनालिटिकल थिंकिंग ऑल्सो मैटर्स। डेटा में से क्या इंफॉर्मेशन निकालना है? फॉर एग्जाम्पल आईपीएल डेटा, व्हाट इंफॉर्मेशन यू वुड टेक आउट? You would like to find out how many times Mumbai Indians played in home ground, won the toss, and won the match also. This is a question. Out of so many matches, you have to filter these kinds of information from the data. यही बात जर्मनी के सिटीजन वाले को समझाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज he or she does not know about the domain of the data. That's what I'm stressing here. डोमेन, डेटा का डोमेन बहुत ज्यादा मैटर करता है। डेटा डिक्शनरी बहुत ज्यादा मैटर करता है। Okay, now that is the first thing. Okay, now let's go back. See, these things you should have covered in the data analysis part also. Okay, क्या कह रहे हैं? my name is okay, ठीक है। cost amount, जामिनी कुछ कह रही हैं कि कॉस्ट अमाउंट कहाँ पे है। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू, अब ये तो हुआ डेटा के बारे में। एज सुन एज यू रिसीव एनी डेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम इन द इंडस्ट्री व्हाट हैपेंस, दे गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, लाइक they give you the data dictionary, they give you the detailed information about the columns and how data is related and all. Okay, now let's go back now let's go back to our report wave. Now we will have to go through the visualization, but before visualization always we need to understand a little bit of theory. Okay, basically the nature of the data we have to understand. See, if I'm plotting this is a your bar chart. Okay, if I'm plotting it, I'm putting y-axis on here and sales on here. You may ask question, why category only here? Why not here? Why this here? Why not this? What is this? What we can supply? For example, I'll supply some other in the legend here. Why this only in the legend? Why not any other column? So if you want to understand all of this, you need to understand the nature of the data. What is the nature of the data? Meaning what type of data a column consists of. Okay, what type of data a column consists of. Okay, before moving to that, I just forgot one more thing here about the data information. Always remember one row in a tabular data, in a tabular data, where your data is stored in rows and columns, हमेशा याद रखो, एक रो क्या बताता है? एक रो बताता है एक ऑब्जर्वेशन। ओके, एक रो क्या बताता है? एक रो बताता है ऑब्जर्वेशन। जैसे ये ऑर्डर्स का डेटा है, तो एक रो मेरा एक ऑर्डर का पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर मैं इसकी स्टोरी बनाऊं, ये ऑर्डर जो 19 नवंबर को प्लेस हुआ और 24 नवंबर को शिप हुआ, उस बंदे ने स्टैंडर्ड क्लास प्रेफर किया, शिप मोड, उसका आईडी ये है, उसका नेम ये है, कॉर्पोरेट सेगमेंट से वो बिलोंग करता है, सिटी इस सिटी से आया था, इस स्टेट से आया था, इस कंट्री से था, इस रीजन से था, मतलब उसने क्या प्रोडक्ट लिया, कितना सेल किया, कितने। सो ऑलवेज रिमेंबर वन रो corresponds to one observation in that particular business or domain. चलो अब ऐसे समझते हैं कि अगर मेरे पास एजुकेशनल डेटा है, एजुकेशनल स्टूडेंट का डेटा है, एक रो क्या बात करेगा? एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन देगा। कॉलम क्या होंगे? कॉलम सबके लिए कॉमन होंगे। रोज क्या होंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिक होंगे, कुछ रोज रिपीट भी कर सकते हैं। ओके, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रोज रिपीट यूनिक होंगे। ठीक है, तो ये रो फिर से नहीं रिपीट होगा, ये रो फिर से नहीं रिपीट होगा। ये इंफॉर्मेशन अगर वो है तो वो डुप्लीकेट है, दैट इज अ प्रॉब्लम इन द डेटा, वो आपको रिमूव करना होगा। ठीक है, तो दैट्स अ पार्ट, वो लंबी कहानी है, बाद में हम देखते हैं प्रॉब्लम्स कैसे चेक करते हैं इसमें। तो एक रो बताता है ये। अब इसके बाद हम जाते हैं टाइप्स ऑफ डेटा समझते हैं। Majority of the time, generally you have these, I mean, like क्या कहते हैं उसको, broadly categorized into, sorry for that, data जो है broadly categorized into two types, categorical
numerical. Okay. Now let us understand one by one. Before that, I just want to know you have any doubts here. I'm just open for 30 seconds or 1 minute so that I get a little bit rest as well. So I generally keep it 30 seconds or 1 minute for your doubts. You can just let me know in the chat and then we will proceed further with this. If you can text it if you can. While I'm explaining, you can just type down your queries there only. Okay, whenever you encounter a problem, you can just type it down there only. See, it's in interest, not just it will save a lot of time. Believe me, I have been conducting sessions. Okay, जैसे आप टेक्स्ट लिखते हो ना, वो सारे लोगों का टाइम बचाता है, मतलब आप जितने भी हैं ना वो सबका टाइम बचाता है, रादर वो बोलने में। ठीक है। ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो डेटा ब्रॉडली कैटेगराइज्ड हुआ है। एक मिनट, मैंने शेयर नहीं किया स्क्रीन शायद। तो ब्रॉडली कैटेगराइज्ड हुआ है कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल में। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू विल सी। ओके, कुछ और टाइप के भी डेटा होते हैं। अब जैसे मैं बताता हूँ, रो आईडी है, ठीक है। ये क्या टाइप का डेटा है? एक न्यूमेरिकल डेटा है, मतलब इसमें सारे सेल्स में सारा इंफॉर्मेशन न्यूमरिक में है, ठीक है। ऑलराइट, ये क्या है? अल्फा न्यूमरिक है। ओके, पर इट्स अ कैटेगरी। मैं बात करूंगा कैटेगरी क्या होती है। डेट एंड टाइम है, डेट एंड टाइम है। ये क्या है? शिप मोड। इट्स अ कैटेगोरिकल डेटा। मेरे टोटल डेटा पॉइंट्स कितने हैं यहाँ पे देखो आप, अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेगा 51,290 रोज, मतलब मेरे पास टोटल 51,000 रिकॉर्ड्स का डेटा है, 51,000 ऑर्डर्स का डेटा है। ओके, बट इफ आई लुक एट this column, no matter it is 50,000 or 1 lakh rows, always will have only these 4 values. Either it will be first class, same day, second class, or standard class. There are only 4 category in the data. There is no other thing here in this column. You can check it out. You can go up and down. You can check it out. It consists of categories. This is designed by the industry people, beginner organization itself. Customer has to either choose first class, same day, second class, or standard class. Okay. Customer ID. Okay. Customer ID is also a category, but what? Lot of categories. Because why? See, every category is, every customer ID is not the same thing. It repeats. I mean, like it is unique for the customer. Customer name, again, categorical data. Yes or no? It's a category, right? It's just that ship mode was very minimum, having ship mode column was having very minimum categories, but the customer name will have lot of categories. Okay, guys, just give me 2 to 3 minutes. I'll be back. Okay.
Okay. So this is also a categorical data. This is also a categorical data. It's just that the categories are very few here. The categories are huge in number. Okay. City is also a categorical data, right? Country is also a categorical data. Region is also. Market is also. Product ID is also. Category. Okay. How many categories? Basically 3 categories. So though the name is category, it's a categorical data. Subcategories, also a categorical data. Product name is categorical data. Sales is a numerical data. Quantity is a numerical data. Profit is a numerical data. Shipping cost is a numerical data. Order priority is a categorical data. I hope you understood what are categorical data. What are numerical data. Okay. Shoaib, all those questions will be dealt when I'll be taking this data transformation classes. Okay, how to detect duplicates in any particular column, how to find out problems in the data, whether there are missing values and all. Okay, that comes into an all set of new. I mean, like all that's all discussed in another session. Okay, so here we are focusing on the और क्या कहते हैं उसको विजुअलाइजेशन पे हम फोकस कर रहे हैं और डेटा पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीजें भी हो जाएंगी इसी में। ओके, तो दिस इज अबाउट, ठीक है, थैंक यू। तो दिस इज अबाउट द डेटा। नाउ लेट मी कम बैक हियर। तो स्टार्ट एआई कंपेनियन पार्टनर आस्क यू टू, छोड़ो यार, कहाँ का एआई कंपेनियन। ओके, तो नाउ टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। कैटेगोरिकल होता है, न्यूमेरिकल होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को छोड़ दो। Again, inside the categorical, there are 2 more: nominal, ordinal, discrete, continuous. See here, these are also important, but not at this position. When you are learning machine learning, these will these will be very important at that time. But for analysis and all purpose, we need not to worry about it. Like categorical, numerical, इतना पता है, बस बात काफी है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल, वो सारी चीजें हमें पता चल गई। ओके, अब नाउ आई विल शेयर यू द डॉक्यूमेंट ऑल्सो अबाउट द डिफरेंट विजुअल्स। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। पहले हम यहाँ पे जाते हैं कि स्टैक्ड बार चार्ट है, ठीक है, बार चार्ट। अब इसको समझते हैं। देखो, आप इसके विजुअल को देखो पहले। ये क्या है, यहाँ पे देखो, सिंगल सिंगल बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल बिल्डिंग्स हैं। एक बिल्डिंग क्या स्पेसिफाई कर रही है पता है, यहाँ पे एक कैटेगरी को स्पेसिफाई कर रही है। ओके, और बिल्डिंग्स मतलब ऊपर नीचे होती जा रही हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे पता करना है, फॉर एग्जाम्पल इस डेटा में मैं जाता हूँ, मुझे पता करना है कि मेरा जो सेल है, ठीक है, मेरा जो सेल है वो मार्केट वाइज कैसा बिहेव कर रहा है। समझो, कितने मार्केट हैं, मार्केट प्लेसेस, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, लैटिन अमेरिका, यूएसए है, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो कि मेरा सेल, हाउ माई सेल इज बिहेविंग अकॉर्डिंग टू मार्केट, मतलब किस मार्केट में ज्यादा सेल है, किस मार्केट में कम है, वो काइंड ऑफ थिंग आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। तो पहले तो ये मुझे पता है कि मार्केट एक कैटेगोरिकल कॉलम है, और यहाँ पे जो दिख रही है ना आपको, ईच बिल्डिंग स्पेसिफाइज वन कैटेगरी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई सा भी आप यहाँ से कैटेगोरिकल कॉलम लाके वाई एक्सिस को दोगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में सारी कैटेगरी दिख रही हैं, तो मैं कोई सा भी कैटेगोरिकल कॉलम लूंगा। जैसे मैं समझो कैटेगरी लेता हूँ वाई में। ओके, अब पहले इससे पहले समझाने के लिए, ओके, अब मैं क्या कंपेयर क्या कर रहा हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू आर यूजिंग बार चार्ट और कॉलम चार्ट, ऑलवेज रिमेंबर you have to supply one numerical column where the buildings are approaching to on top, मतलब जहां बिल्डिंग्स ऊपर चढ़ती जा रही है ना, वहां पे एक न्यूमेरिकल देना होगा। बिल्डिंग जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पे एक कैटेगोरिकल देना होगा। और मेरा ये विजुअल भी ऐसे ही बता रहा है। तो मैं क्या करता हूँ अभी फिलहाल, आई विल टेक मार्केट इन द वाई एक्सिस,
बिकॉज वाई में ये बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, तो आई जस्ट ड्रॉप इट हियर। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पकड़ के रख रहा हूँ। ओके ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप, पकड़ के रख रहा हूँ मार्केट को, और वाई एक्सिस में छोड़ दिया मैंने। अब मेरे पास सेल्स वाला कॉलम भी है, प्रॉफिट वाला कॉलम भी है। मेरे पास वाई में सॉरी एक्स में देने के लिए एक न्यूमेरिकल चाहिए, क्योंकि मुझे पता करना है ना कि वैल्यूज वाइज कौन से मार्केट में है। तुम सेल भी दे सकते हो और तुम प्रॉफिट भी दे सकते हो। You can give sales, you can give profit, both are numerical column. You can give quantity also, you can give row id also, but does that make sense? सोचो, मतलब कोई सा भी ऐसे नहीं कि मतलब कैटेगोरिकल है दे दो, न्यूमेरिकल है दे दो, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। थिंक सेंसिबली। मतलब तुम्हारा जो डेटा मिला है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको ये डेटा दिया जाए, अगर तुमको कहा जाए कि इसमें से कुछ तुम चीजें निकाल के लाओ, खोजो इसके अंदर से बैठ के, क्या तुम निकालना चाहोगे? यही तुम निकालना चाहोगे कि सेल्स कहाँ बेहतर हो रहा है, कहाँ खराब हो रहा है? यही तुम निकालना चाहोगे प्रॉफिट कहाँ बेहतर है, कहाँ खराब है? तुम रो आईडी से लेके क्या कर लोगे, है ना? प्लीज थिंक सेंसिबली। रो आईडी की से तुम क्या पता करोगे कि मतलब कौन से रो आईडी में कितना आ रहा है? वो कोई मतलब ही नहीं बनता। डन। तो यू हैव टू थिंक सेंसिबली ऑल्सो। इट्स नॉट दैट कि मतलब एक वो विजुअल ये पूछ रहा है कैटेगोरिकल, कोई सा भी कैटेगोरिकल उठा के दे दिया। विजुअल न्यूमेरिकल पूछ रहा है इसलिए कोई सा भी न्यूमेरिकल उठा के दिया, ऐसा नहीं। आपको सेंसिबली यू हैव टू अप्लाई योर इंटेलेक्ट ऑल्सो, लॉजिकल भी वो सही होना चाहिए। अब पहला तो काम हमारा ये हुआ कि एक विजुअल बनाना था, वो जो हमने बना लिया। दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट काम है विजुअलाइजेशन में, याद रखो विजुअलाइजेशन में तीन चीजें हैं, इसको याद रखो ऐसे। एक तो होता है कौन सा कॉलम कहाँ देना है, हर विजुअल के लिए ये पता होना जरूरी होता है। दूसरा होता है जैसे न्यूमेरिकल या कैटेगोरिकल। दूसरा होता है कौन सा विजुअल चूज करना है। तीसरा होता है क्या पता है, क्या इंसाइट्स निकल के आ रहे हैं। तीसरा जो बोल रहा हूं ना मैं, थर्ड वाला, जो इंसाइट्स निकल के आ रहे हैं, ये हीरो पार्ट होता है। एक विजुअल का हीरो पार्ट क्या होता है, उसका इंसाइट्स, उससे तुम क्या निकाल के ला रहे हो। नाउ अगर ये तुम बच्चे को भी दिखाओगे, बड़ी बिल्डिंग को वो कहेगा कि ज्यादा वाला है, छोटी वाली उससे कम वाला। तो विजुअलाइजेशन का फायदा ये है कि टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल बंदा सब समझ जाएंगे। इसीलिए हम रिपोर्ट पे रिलाई करते हैं। क्यों डिपेंड करते हैं, क्यों? उसको टेक्निकल बंदा भी समझता है, नॉन टेक्निकल भी समझता है। तुम इस डेटा को इस डेटा को ऐसे सारे रिपोर्ट्स में, ऐसे सारे विजुअल्स यूज करके एक रिपोर्ट बना के किसी को बता दो, तुम्हें एक्सप्लेन भी करने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझ जाएगा। इवन अगर वो मतलब एक स्कूल का बच्चा है तो भी समझ जाएगा, कि वो खुद ब खुद बता देगा कि मतलब एशिया में बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, यूरोप में उससे कम सेल हो रहा है, यूएसए कनाडा रीजन में उससे कम है, लैटिन अमेरिका में उससे कम है, अफ्रीका में उससे कम है। सेल जो जहां पे हो रहा है वो एशिया पैसिफिक है। देखो, वैसे अगर मैं इस डेटा को देखता तो कुछ नहीं निकल के आता। जैसे ही मैंने विजुअल बनाया बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। ये जो विजुअल है 50,000 ऑर्डर्स के ऊपर बना हुआ है। 50,000 ऑर्डर के, तुम सोच सकते हो कितना फास्ट बना ये, कितना फास्ट इसने कैलकुलेट कर लिया। नाउ इफ यू जस्ट हावर, मतलब अपना कर्सर तुम यहीं पे कहीं पे बिल्डिंग पे रखो, इसको बार कहते हैं, ओके, टेक्निकली बार, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैंने बिल्डिंग बता दी। तो अगर तुम इस पे रखो तो यू विल फाइंड टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यों टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भाई? दो ही तो कॉलम हमने लिए थे, एक तो मार्केट वाला, एक तो सेल्स वाला। तो वही ये बता रहा है कि ये मार्केट जो है एशिया पैसिफिक है, और टोटल यहाँ पे सेल्स जो हुआ है, ये क्या कह रहा है, सम ऑफ सेल्स। डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। ये कह रहा है सम ऑफ सेल्स, मतलब ओवरऑल अगर सेल्स, टोटल सेल्स पहले मालूम कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, मैं इसको अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड कर सको आप। यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ मैं, यहीं पे भी छोड़ सकते थे। यहाँ पे मेरा टोटल सेल्स जो हुआ है इस बिजनेस में, वो 12 मिलियन हुआ है। 12 मिलियन में से एशिया पैसिफिक में मुझे 4 मिलियन निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखो ये मिलियन बता रहा है, ठीक है, मिलियन मिलियन मिलियन, ये स्केल जो है ना ये मिलियन में है। ये स्केल जो है वो नाम है कैटेगरीज के, जो हमने यहाँ पे देखे थे। कहाँ पे है मार्केट? यहाँ पे जो हमने देखे थे, एक एक कैटेगरी का एक एक नाम बन के वहां पे
निकल के आ रहा है, और ये सेल्स जो है ना वो सम हो रहा है। अगर मुझे सम नहीं चाहिए, चलिए भैया मुझे मैक्सिमम वैल्यू, मतलब एशिया पैसिफिक में ऐसा कस्टमर बताओ, मतलब ऐसा डेटा बताओ जहां पे बहुत मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, एक ऑर्डर ऐसा जो जिसका वैल्यू बहुत मैक्सिमम थी। तो अगर वो चाहिए होगा तो यहाँ पे आप देखोगे, सॉरी, इसको पहले आपको विजुअल को क्लिक करना होगा, ठीक है। ये विजुअल क्लिक होगा तो इसके हिसाब से यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी, ये विजुअल क्लिक होगा तो इसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी। तो ये तो कह रहा है कि टोटल सेल्स इतना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन, यहाँ पे एक जो एरो मार्क है वहां पे क्लिक करता हूँ, इफ आई क्लिक ऑन टू दिस, अगर मैं कहता हूँ मैक्सिमम, यूएस से कनाडा रीजन में ना बहुत एक एक बंदा ऐसा है जिसने 22,000 रुपए का एक प्रोडक्ट खरीदा है। मैक्सिमम क्या बताता है, एक ही वैल्यू बताता है, व्हाट इज द मैक्सिमम सेल। एक बंदा, एक ऑर्डर जो बहुत ज्यादा उसमें सेल निकल के आया, $22,000 इज अ सेल कमिंग फ्रॉम यूएस कनाडा रीजन। मतलब सारी अरेंजमेंट ऊपर नीचे हो गए अब, क्योंकि हम टोटल नहीं पूछ रहे हैं, मैक्सिमम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो लैटिन अमेरिका में 3,474 का निकल गया। नहीं, मुझे मिनिमम वाइज चाहिए, हर रीजन में मिनिमम सेल क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे यूरोप में $1.94 का भी एक सेल हुआ है, उससे कम है लैटिन अमेरिका, उससे कम है वन एशिया पैसिफिक, $1, $0.44 इन यूएस कनाडा रीजन ऑल्सो। ये मिनिमम सेल्स हैं, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ से अपने विजुअल्स को एवरेज देख सकते हो। एवरेज क्या होता है, सारे वैल्यूज को पकड़ा इस रीजन में, डिवाइडेड बाय उतने नंबर्स, ठीक है। तो एवरेज भी आप देख सकते हो। तो एवरेज भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज $282। मतलब ऑन एन एवरेज एशिया में $282 के ऑर्डर प्लेस होते हैं, कुछ कम होते होंगे, कुछ ज़्यादा होते होंगे। यूरोप में 280, ओके, ऐसे करके आपको ये मिलते हैं एवरेज, ओके। तो जनरली हम इसको सम ऑफ सेल्स रखते हैं, डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट में। और भी बहुत सारे स्टेटिस्टिकल मेजर्स हैं यहाँ पे, जैसे काउंट है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, अगर आपको पता है स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, मीडियन, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको मिल ही जाएंगी। चलो, अब हम इसको ऐसे ही रखते हैं। एक और चीज़, जैसे यहाँ पे है, एक है लीजेंड बोल के, करता क्या है लीजेंड, एक बात याद रखो हमेशा से, लीजेंड जो होता है ना वो ऑलवेज उसको कैटेगोरिकल कॉलम लेना होता है। यहाँ पे कभी भी आप न्यूमेरिकल कॉलम ना दें, क्यों ना दें मैं वो भी बताऊंगा आपको, ओके। नाउ व्हाट आई विल डू, बस इतना ही समझते हैं कि यहाँ पे कैटेगोरिकल देना है, क्यों देना है वो भी समझते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं कैटेगरी को उठाता हूँ क्योंकि इसमें कम कैटेगरीज हैं, और लीजेंड को दे देता हूँ। क्या समझ में आया, देखो कितने हमने कॉलम्स ले रखे हैं अभी, 1, 2 और 3, ठीक है। जैसे ही मैं अपने किसी भी बिल्डिंग पे रखता हूँ अपना कर्सर, यहाँ पे मुझे 3 इंफॉर्मेशन मिलती हैं। इससे पहले क्या हुआ था, 2 इंफॉर्मेशन मिल रही थी। अब क्या होगा, कैटेगरी अगर मैं लीजेंड पे रखता हूँ तो मुझे 3 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी। एशिया पैसिफिक है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी कैटेगरी, कैटेगरी क्या है, अगर आप वापस जाओ कैटेगरी को चेक करो, कहाँ पे है कैटेगरी में, 3 कैटेगरी है मैंने बताई थी, ऑफिस सप्लाई, और कहाँ पे है यार, यहाँ पे ऑफिस सप्लाई है, टेक्नोलॉजी है और फर्नीचर है। तो ठीक है, तो अब जो मेरा बिल्डिंग एशिया पैसिफिक का था, एशिया पैसिफिक में कितना मेरा सेल्स ऑफिस सप्लाई से आ रहा है, टेक्नोलॉजी से आ रहा है, और क्या कहते हैं उसको, एशिया पैसिफिक से आ रहा है, और सॉरी फर्नीचर, ये ऑफिस सप्लाईज और फर्नीचर से आ रहा है। तो मुझे एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन निकल के आई, समझ रहे हो, आई गॉट 3 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नाउ। गाइस, इज दैट क्लियर? प्लीज लेट मी नो if you have any doubt so far. Whenever you encounter any doubt, there and then you just type it down, so that मैं वो चेक करते रहूँगा आपके चैट, मीनवाइल मैं चेक करता रहता हूँ कि किसी को कोई डाउट है तो मतलब मैं वहीं पे जाके उसको क्लियर भी कर ही देता हूँ।
Okay, no doubt, right? Okay, 30 seconds. 30 second is the max, or max is like 1 minute I give for your questions. एक मिनट भाई, चलिए कुछ छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। 8:32 है, 8:39 या 8:40 पे हम वापस आते हैं फिर।
Hello everyone, welcome back to the session. Hello everyone, welcome back. Sorry for the interruption. Okay, so now what we are doing here is we have understood how to plot this. Okay. Now in the similar fashion, now the name of the chart is, इसका नाम क्या है? Stacked bar chart है. इसको stacked क्यों कहते हैं? कि एक individual bar में आप multiple categories को stack कर सकते हो, ठीक है? Using the legend को यूज करके आप मल्टीपल कैटेगरीज यहाँ पे स्टैक कर सकते हो, और जैसे ही आप यहाँ पे हाउ करोगे, यहाँ पे बहुत सारी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको निकल के आएंगी. ओके, एक और चीज है स्मॉल मल्टीपल्स, ठीक है? दिखाएंगे दिखाएंगे, जस्ट बी पेशेंट. ओके, एवरीथिंग विल बी डन. ओके, तुषार बताएंगे कि मतलब प्रॉफिट कैसे बताते हैं और सेल कैसे बताते हैं, ठीक है? दिखाएंगे, दैट्स ओके. ऑलराइट, सो दिस इज just a minute. Okay, everything's fine now. Good. So this is a stacked bar chart. Now I was telling that there is one more thing here called small multiples. Okay, small multiples क्या करता है? एक grid form करता है multiple graph का. मैं यहाँ पे again small multiples always takes a categorical column only. If I give first, let's finish the legend. Okay, if I give any numerical column here, for example, if I take the profit and give it in the numerical column, sorry, in the legend, what will happen? You see here. Why? Because see, in the profit, lot of data is there, and it thinks as everything as a category. Okay, look at this. That's a category, right? So there are a lot of values in it, and it has got a lot of categories in it. So that's why it is not feasible for us to give a numerical column. Okay, always in the legend, what we do, we give a क्या कहते हैं उसको, categorical column such as this. Okay, now I'll do back to remote. If you want to focus and just want to understand one particular thing, you can go to focus mode here. Okay, focus mode, that will focus to it, and then back to report, it will come back to the original state. Okay, now we have small multiples. Again here, this also takes a categorical column only. For example, I'll take a categorical column such as region in the small multiples. Okay, now okay, what happened is we have given too much of information. Let's get rid of this. No, 1 minute. Okay,
एक्स हो गया, वाई हो गया, कोई छोटा वाला लेते हैं, जैसे लीजेंड में हम लेते हैं कैटेगरी, सॉरी स्मॉल मल्टीपल्स में लेते हैं कैटेगरी. What has happened here? How many categories we have? We have three categories. Now three different plots will come up, each for one category. This is for furniture, this is for office supply, this is for technology. What are you looking? You are looking in furniture. That was the same what we did in the legend, but this is also a way to separately understand with different categories. Okay, this was also happening in the same fashion. You were getting the same information here also. But if you want to understand separately, what you can do is you can just supply it to the small multiples. Clear? Just a minute. Okay. So I hope you have understood the stacked bar chart. You have any doubts on stacked bar chart? Okay, so let's move ahead now. Let me just get rid of small multiples. Okay, there's one more thing called tooltip. We will discuss about it. Okay, because it will be too much for one particular visual. You can also try, but tooltip always accepts what? Accepts the numerical column. Okay, so here legend accepts what? Categorical. Small multiples categorical. Tooltips numerical. This is standard for these three. X and Y keep on changing depending on the visual. Okay, now we will click on somewhere outside and we will click on to the next column chart. Okay, next column chart. Okay, now again the same logic. Buildings are starting here on the x-axis. They are going on top y-axis. It's just nothing but the same thing. Bar chart, what you did, it's the same thing, but it is just in the um, uh, vertical manner. Okay, so again x-axis, just make sure it's a categorical data, any categorical data, such as I'll take it region is also a category. Y-axis, any numerical data, sales. Look at this. Okay, so you got the this one. Okay, and the legend will go again a categorical. Look at this. All right, so this is also the same thing. This is also stacked column chart. It's not a good way to send market there. Generally, you have to supply categories. That would be best because market and the region are quite a bit similar. That's why you are not getting the different stacks here. Okay, you can try for the small multiples also, such as maybe you can try for, you can't do this one subcategory ship mode. You can try small multiples. Look at this. According to ship mode, where all the this is happening. See here, this is for first class. This is for second class. Same day. Second class, standard class. Now, be it any region or any market, most of the customers are preferring what? Standard class. And the Western European region is the one region where most of your this is the orders are coming. The sales is more here, right? Are you able to understand this? Hello, everyone. Are you able to understand this? Please let me know. I'm here for another 10 seconds.
किसमें डाउट है? शिप मोड, ओके। ओके, मैं बताता हूँ। अभी स्मॉल मल्टीपल्स को हटाते हैं फिलहाल, ठीक है? इतना तो समझ में आया, यू हैव अंडरस्टूड कि एक्स एक्सिस में कैटेगरीज जा रही हैं, वाई एक्सिस में सेल्स का वही सब जा रहा है। तो उस हिसाब से तुमको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये क्या बता रहा है? व्हाट इज दिस टेलिंग मी? इट्स टेलिंग मी हाउ मच इज द सेल कमिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी इन द वेस्टर्न यूरोप रीजन। वेस्टर्न यूरोप में टेक्नोलॉजी से कितना आ रहा है, ऑफिस सप्लाई से कितना सेल हो रहा है, और इससे कितना सेल हो रहा है, फर्नीचर से। सारी चीज़ों को ऐसे ही आगे आगे जा रहा है, ठीक है? सेंट्रल अमेरिका में क्या है, ओशियनिया में क्या है, साउथ ईस्टर्न एशिया में क्या है, सदर्न एशिया में, ईस्टर्न एशिया में, वेस्टर्न एशिया में। तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी में कितना है, ऑफिस सप्लाई में कितना है, फर्नीचर में कितना है, एक एक करके इंडिविजुअली वो सेल हमें पता चल रहा है, ठीक है? सबसे कम जो सेल आ रहा है वो सेंट्रल एशिया से आ रहा है, ओके। उससे थोड़ा ज़्यादा कनाडा से आ रहा है, ओके। नाउ अब ये हुआ। अब मुझे पता करना है, ये यही सारी चीज़ें पता करना है कि मैंने क्या लिया था यहाँ पे, शिप मोड लिया था। अलग अलग शिप मोड वाइज कैसे हो रहा है, ओके। यहाँ से मैं अभी फिलहाल कैटेगरी हटा देता हूँ। शिप मोड को मैं क्या करता हूँ, मैं लीजेंड में भी डाल सकता हूँ, वहां पे भी मुझे इंफॉर्मेशन निकल के आएगा। अगर मुझे अलग अलग शिप मोड के लिए अलग अलग प्लॉट चाहिए, ओके, देर आर 4 शिप मोड्स, आई डोंट वांट फॉर ऑल शिप मोड द डिफरेंट प्लॉट। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यहाँ पे देखो, ये सारे एक्स एक्सिस हैं, ओके, ये सारे वाई एक्सिस ऑलवेज सेल्स रहेगा। देखो यहाँ पे सेल्स डाला है, तो वाई, इसके लिए भी सेल है, इसके लिए भी सेल है, इसके लिए भी सेल है, इसके लिए भी सेल है। एक्स एक्सिस इसके लिए भी क्या कहते हैं, रीजन है, इसके लिए भी रीजन है, इसके लिए भी रीजन है, इसके लिए। इट्स जस्ट दैट उसके उसने नेमिंग यहाँ पे नीचे कर रखी है। कनाडा फर्स्ट सेकेंड क्लास में बहुत कम आ रहा है, कनाडा में फर्स्ट क्लास में सेल कम आ रहा है, ओके। सेंट्रल अमेरिका में सेकेंड क्लास में ज्यादा आ रहा है, फर्स्ट क्लास में भी ज्यादा सेल आ रहा है, समझ रहे हो? और जैसे सेम डे का सेल ऑलमोस्ट हर रीजन में बहुत कम कम ही है। और जैसे स्टैंडर्ड क्लास का जो सेल है हर रीजन में वो ज़्यादा है, एक्सेप्ट फ्यू। मतलब सेंट्रल एशिया में, तो क्योंकि सेंट्रल एशिया में वैसे भी सेल ज़्यादा हुआ नहीं है, तो वेस्टर्न यूरोप में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? इज दैट क्लियर नाउ? जुबैर सी, मैंने जैसे ही क्लास स्टार्ट किया ना, तो ये सारी चीज़ें मैं बताया कि फर्स्ट क्लास क्या है, सेकंड क्लास क्या है। ये क्या है शिप मोड में, यहाँ पे आप जाओ, वही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। जैसे ही आपको डेटा मिलता है, पूरा डेटा को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिपोर्ट बढ़ाना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना डेटा को पढ़ना है। कहाँ पे है? अबे शिप मोड कहाँ पे गया? यहाँ पे। फर्स्ट क्लास हो सकता है शिप मोड, सेकंड क्लास हो सकता है, स्टैंडर्ड क्लास हो सकता है, सेम डे हो सकता है, ठीक है? आई एम जस्ट गिविंग अनदर 2 मिनट्स हियर। मतलब किसी को इन्हीं चीज़ों पे डाउट है तो प्लीज़ टेक्स्ट कर लेना, यहीं पे क्लियर करके आगे
ओके गाइस, तो okay, it will be cleared. Okay, as we move further and as we do more of this, it will be clear. Don't worry about it. Okay, तो चलो फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट हम आगे क्या कर रहे हैं। 1 मिनट, हाँ, एक मिनट बस देना और। सॉरी फॉर द इंटरप्शन अगेन, जस्ट दैट कुछ चीज़ें यहाँ पे फंसी पड़ी थी बस, और कुछ नहीं। ठीक है, हो गया। ये मेरा मोबाइल चार्ज खत्म हो गया था इस पे, इसी पे वो ये कनेक्टेड होता है हॉटस्पॉट। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट विजुअल पे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ डाउट्स रहेंगी। यू हैव टू वर्क, प्रैक्टिस करो, मतलब रूल्स को फॉलो करो और प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ें निकल जाएंगी। इन केस यू हैव स्टिल मोर, यू कैन जस्ट अप्रोच मी। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारा जो ये लाइन में है वो एक क्लस्टर्ड बार चार्ट है। ठीक है, एक था हमने जो देखा स्टैक्ड बार चार्ट और स्टैक्ड कॉलम चार्ट। कॉलम वैसे वैसे खड़े वाले थे और ये जो लेटे वाले थे बार वाली में। ओके, अब ये क्लस्टर्ड बार चार्ट, वैसे ही ये भी है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, दोनों एक है। मैम कॉलम चार्ट लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम थिंग होगी। जैसे ये एक्स में ना बिल्डिंग्स हैं, बट साइड बाय साइड बिल्डिंग्स हैं। क्यों साइड बाय साइड है ये समझते हैं। तो एक्स में बिल्डिंग ही जाएंगी तो कैटेगरी जाएगी, कोई सा भी कैटेगरी कॉलम ले लो। जैसे मैं हमेशा यही ले रहा हूँ, तो अब लेते हैं, समझो शिप मोड हो गया। चलो शिप मोड लेते हैं, एक्स में शिप मोड रखते हैं और वाई में सेल्स रखते हैं। मतलब शिप मोड, किस शिप मोड में कितना सेल आ रहा है ये पता करना है, तो सेल रखते हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि स्टैंडर्ड क्लास में जो है ना, वो मेरा अच्छा खासा सेल स्टैंडर्ड क्लास से आ रहा है। तो मतलब जो जो कस्टमर्स स्टैंडर्ड, जो मैक्सिमम कस्टमर्स जो है ना, वो सेल, सॉरी, ऑर्डर अपना स्टैंडर्ड क्लास से मंगवाना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्लास वाले उसके बाद, फर्स्ट क्लास वाले उसके बाद, सेम डे वाले उसके बाद। अगर आपको चाहिए कितने कितने कस्टमर आउट ऑफ 50,000, हाउ मेनी कस्टमर्स, तो आप यहाँ पे जाके ना काउंट कर लो, तो आपको पता चलेगा 30,000, सम 30,000 कस्टमर्स आर कमिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड क्लास। 10,000 लोग सेकंड क्लास से, 7,000 लोग वहां से, 7,000, एंड 2,700 ऑर्डर्स हैव कम फ्रॉम, have preferred same day as their delivery। ठीक है, अब ये तो हो गया, चलो इसको मैं वापस से सम कर देता हूँ। ये तो हो गया, मुझे ये पता करना है, साइड बाय साइड मुझे देखना है कैटेगरी वाइज, मतलब कौन से कैटेगरी में कैसे कैसे क्लास पसंद किया गया है। यहाँ पे आप देखो, स्टैंडर्ड क्लास जो है ना, टेक्नोलॉजी में भी, टेक्नोलॉजी वाइज स्टैंडर्ड क्लास, मतलब जो बंदा टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट खरीद रहा था, उसने भी स्टैंडर्ड क्लास, कितने बंदे ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड क्लास को प्रेफर कर रहे हैं, यहाँ पे आप काउंट कर लो। एक तो ये पता चल रहा है कि पहले, अरे 1 मिनट, काउंट ऑफ सेल नहीं करना था मुझे। ओके, ठीक है। ओके, मैं लीजेंड में नहीं करना चाहिए मुझे। ओके, तो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, हियर व्हाट आई एम सेइंग बेसिकली, व्हाट इज द टोटल सेल, sum of sale, it's not the count. Okay, total sale coming from standard class. Okay, this is the total sale coming from the standard class. Okay, again inside which how much is from technology, how much is from office supply, and how much is from standard class। समझ रहे हो ना। दो यहाँ पे बहुत अच्छी मीनिंग निकल के नहीं आ रही है, बस इट्स जस्ट दैट कि हमने वो रूल फॉलो किया तो विजुअल बन गया है। ओके, तो यू मेक श्योर कि ऐसे विजुअल्स बनाओ जहाँ पे बहुत अच्छी मीनिंग निकल के आए। ठीक है, तुम यहाँ पे लिजेंड में ना
व्हाट यू कैन गिव इज बेसिकली शिप मोड जो लीजेंड में रखना चाहिए था, और कैटेगरी को यहाँ पे रख लेंगे। मीनिंग तो वही है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको चेंज करते करते मतलब प्रैक्टिस करो, सिंगल विजुअल, ईच विजुअल एट अ टाइम प्रैक्टिस करो। और ये जो है ना, ये ऐसे वाला हॉरिजॉन्टल वाला ये है, ये लेटा हुआ, ठीक है। दिस इज इट। एंड 100% स्टैक्ड बार चार्ट। नाउ एक और है, आई होप द क्लस्टर चार्ट इज क्वाइट क्लियर टू यू, all these part. Here also small multiple is there, here also tooltip is there. ओके, थैंक यू गजानन। अब मैं एक एक बात यहाँ पे आपको बताऊंगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या हुआ, एट ए टाइम 5 कॉलम का डेट के साथ आप समझ सकते हो कि डेटा में क्या हो रहा है। ओके, एट ए टाइम 5 कॉलम्स को आप एक साथ समझ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कॉलम को हम समझ रहे हैं, 3 कॉलम को समझ रहे हैं। जैसे एक्स एक्सिस में कुछ दिया, वाई एक्सिस में कुछ दिया और लीजेंड में कुछ दिया, तो 2 कॉलम 3 कॉलम को समझ पा रहे थे। स्मॉल मल्टीपल्स में दिया तो मतलब 4 की तरह 4 कॉलम के साथ पढ़ रहे हैं एक साथ। टूल टिप में कुछ दिया तो 5 कॉलम को पढ़ जाएंगे। ओके, अब मैं टूल टिप को ही समझाता हूँ आपको, लीजेंड को हटा के। ये तो मेरा हो रहा है क्या कहते हैं इसको, कंपैरिजन हो रहा है कि टेक्नोलॉजी में कितना सेल आया और फर्नीचर से कितना आया, ऑफिस सप्लाई। अगर मैं टूल टिप में ऑलवेज रिमेंबर एक न्यूमेरिकल देना होता है, तो मैं उठा के प्रॉफिट रखता हूँ, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुए। पर इफ यू जस्ट टेक योर कर्सर हियर, यू आर गेटिंग 3 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। टूल टिप में आपने क्या डाला है, प्रॉफिट। तो ये क्या बता रहा है कि ऑफिस सप्लाई में सेल कितना आया और प्रॉफिट कितना आया। ये टूल टिप एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे देता है उस विजुअल को। दैट टू व्हेन यू आर यूजिंग टूल टिप्स, मेक श्योर यू आर सप्लाइंग अ, क्या कहते हैं उसको, न्यूमेरिकल कॉलम। क्लियर? चलो फिर आगे हम बढ़ते हैं। फिर ये तो समझ में आ गया होगा, मैक्सिमम यहाँ की चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो फिर ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, बार चार्ट, ओके। 100% बार चार्ट को अब हम समझते हैं। उसको समझने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं। जैसे एक कैटेगरी को पकड़ते हैं, कैटेगरिकल कॉलम को पकड़ते हैं। जैसे ले लो, कैटेगरी को ही ले लेते हैं, नहीं नहीं वो कंफ्यूज करेगा आपको। मार्केट ले लेते हैं, मार्केट, ओके। अब मुझे ये पता करना है, मेरा टोटल सेल्स तो 12 मिलियन का है, ठीक है। लेकिन मुझे पता करना है कि अफ्रीका में कितना परसेंट सेल हो रहा है, परसेंटेज वाइज। 12 मिलियन को अगर 100% करें तो अफ्रीका का कितना सेल बन रहा है, एशिया का कितना बन रहा है, यूरोप का परसेंटेज, लैटिन अमेरिका। मुझे परसेंटेज वाइज चाहिए, ठीक है। 100% स्टैक बार चार्ट क्या करता है, वही काम करता है, वो तुम्हें परसेंटेज वाइज कंपेयर करके दिखा देता है। जैसे मैं यहाँ पे लाता हूँ 100% ये, ठीक है। मैं एक्स एक्सिस में दे देता हूँ, जैसे मैं क्या कह रहा था, मार्केट कह रहा था ना, ठीक है कोई बात नहीं, मैं कोई सा भी ले लेके मैं वहाँ इसको बता दूंगा। तो सेल्स तो वैसे भी वाई में जाएगा क्योंकि बिल्डिंग्स ऊपर चढ़ रही हैं, ठीक है। एक्स में कोई कैटेगरी जाएगी, जैसे ले लो आप कैटेगरी ले लो, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, लीजेंड में डालूंगा एक और कॉलम। तो जैसे मैं डालता हूँ, रीजन डालता हूँ, ओके। बहुत सारी बन के आई हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ, ये एक्स एक्सिस में है ना, एक्स एक्सिस को ना मैंने रीजन कर देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे क्लैरिटी आएगी। और ये कैटेगरी को मैं लीजेंड में डाल देता हूँ। अब यहाँ पे हम समझते हैं, यूरोप में, ठीक है, जो मेरा टोटल सेल आया, यूरोप में जो टोटल सेल आया, एक्चुअली स्टैक्ड 100% कॉलम चार्ट
3 कॉलम के साथ मिलके ही काम करता है, ठीक है। 2 कॉलम के साथ, वो 2 कॉलम के साथ अगर आपको परसेंटेज चाहिए होगा तो पाई चार्ट और डोनट चार्ट है, जो मैंने वो क्वेश्चन किया था, दिखाया था ना आपको, वो थोड़ा मैं कंफ्यूज कर गया। कोई बात नहीं, मैं उसको पाई चार्ट और डोनट चार्ट से दिखाऊंगा। ये वाला जो चार्ट है ना, 100% स्टैक बार चार्ट और 100% स्टैक कॉलम चार्ट, ये 3 कॉलम के साथ काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये है मेरा यूरोप रीजन, ठीक है, और मेरा सेल्स है, यूरोप रीजन में कितना सेल आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, लीजेंड में मैंने टेक्नोलॉजी डाल रखी है, तो टेक्नोलॉजी कितना परसेंटेज है यूरोप में, फर्नीचर कितना परसेंटेज है, ऑफिस सप्लाई कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो यूरोप में जो है ना, टेक्नोलॉजी से जो सेल आ रहा है वो 37% सेल यूरोप में टेक्नोलॉजी से आ रहा है। 34% ऑफ द सेल इज कमिंग फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप, एंड फर्नीचर का जो सेल आ रहा है वो 27% आ रहा है। डन। एक मिनट, इज इट डन? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? देखो मतलब इसी को मैथ की तरह ही समझो, वो उसका फंक्शन है भाई, कैसे मतलब शो हो रहा है, मतलब वो फंक्शन है, इंटरनली कैलकुलेट करता है उसको। टूल टिप वाला रिपीट कर देंगे प्रतीक। क्या कह रहा था मैं कि इसको जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। और एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको ना, होल्ड डाउन अ सेकेंड, मैं एक डॉक्यूमेंट आपको दिखा देता हूँ जो मैं अभी शेयर कर दूंगा, फिर मुझे याद नहीं रहेगा, अभी शेयर कर देता हूँ, ताकि एंड में याद रहता नहीं रहता कभी कभी। एक मेरे पास डॉक्यूमेंट है, जो ये सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, तो मतलब वहीं पे है, मैंने सारी चीज़ें रखी हैं इस पे। अभी मोस्ट ऑफ द विजुअलाइजेशन के लिए मैंने बना रखा है। अम, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे विजुअलाइजेशन, ओके। तो ये मैं अभी इसको पहले शेयर करता हूँ, फिर ओपन करता हूँ। ओपन तो हो गया मेरे पास, आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। फाइल, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, पावर बी आई, पावर बी आई, पावर बी आई कहाँ पे गया, ठीक है, विजुअलाइजेशन, ओके। आप लोग इसको पहले डाउनलोड, विजुअलाइजेशन डॉक कैन नॉट बी सेंड बिकॉज इट इज करेंटली इन यूज, ओ ओ, क्या तो प्रॉब्लम करते हैं ये सारी चीज़ें। एक मिनट, फिर से मैं इसको कर रहा हूँ। Okay, everyone, please download this. Okay, and then I'll show you what about this document. Okay, it will help you in. ये फिर किसी को जानन को चले गया। बाय। लेट मी शेयर अगेन। यहाँ पे कोई टेक्स्ट, चैट पे टेक्स्ट कोई करता है ना, तो क्या होता है कि वो उसी के नेम पे ना वो नेक्स्ट चैट चली जाती है। तो गजानन ने अभी मैसेज किया था, तो मैंने वो अपलोड किया तो उसको चला गया। कोई बात नहीं, मैंने एवरीवन कर दिया है अभी। नाउ यू सी, प्लीज डाउनलोड दिस एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस हियर।
ओके, चलो फिर मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप यू हैव डाउनलोडेड इट। ओके, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, हर विजुअल के बारे में उसका एक डेफिनेशन सा है। एक्स एक्सिस में क्या जाएगा, वाई एक्सिस में क्या जाएगा, कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, और उससे तुम इनसाइट्स क्या निकाल के ला रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं। ऑलमोस्ट एवरी विजुअल के लिए मैंने कर रखा है ये। आप एक बार इसको रिवाइज भी कर सकते हो अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो, ठीक है। बहुत सारे विजुअल, शायद 14-15 विजुअल जो क्वाइट क्वाइट पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं, वो वाले विजुअल्स मैंने यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द विजुअल। ओके, तो चलिए फिर वापस हम चलते हैं हमारे विजुअलाइजेशन पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, बैक टू रिपोर्ट, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जनरली एक ये मैप है, इसको हम लेते हैं। मैप इसने बाय डिफ़ॉल्ट, देखो क्या होता है कि कोई सा भी विजुअल सेलेक्टेड है और आपने कहीं और क्लिक कर लिया तो वो उसकी सारी चीज़ें ले लेता है, ठीक है। तो मैं यहाँ मैप पे आ जाता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये है मैप, लोकेशन वाला कॉलम बहुत काफ़ी हो जाता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उन जगहों पे यूज़ होता है जहाँ जहाँ पे आपका लोकेशन मिल नहीं रहा, लोकेशन वाला कॉलम नहीं है। व्हाट आई मीन, लोकेशन वाले कॉलम कौन से हो सकते हैं, कंट्री है, सिटी है, ये नेम बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि कंट्री है, तभी ये एक्सेप्ट करेगा, नहीं नहीं करेगा। मतलब अंदर तुम्हारा कंट्री का ही डेटा है, अगर तुमने मेंशन नहीं किया कि वो कॉलम का नाम कंट्री नहीं है तो वो लेगा नहीं सही से, वो मेक श्योर करना, ठीक है। तो जैसे ही मैं कंट्री डालता हूँ तो जितने भी कंट्रीज, यूनिक कंट्रीज हैं, वो सारे बबल बन के यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरा सारा सेल यहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कंट्री कॉलम पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे जितने भी कंट्रीज यहाँ देख रही हैं ना, जहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वही सारी कंट्रीज के वो छोटे छोटे बबल बन के वहाँ पे आए हैं। ओके, अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कुछ काम रह नहीं गया। एक होता है बबल साइज, ठीक है, एक होता है बबल साइज। बबल साइज में अगर आप जनरली एक न्यूमेरिकल कॉलम ये एक्सेप्ट करता है बबल साइज, अदर देन दैट इट्स ऑल वी हैव स्टडीड। सेल्स को उठा के मैं अगर बबल साइज में रखूं तो क्या होगा पता है, जो कंट्री में जितना ज्यादा सेल होगा वो उतना बड़ा बबल बना देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो, यहाँ से बहुत ज्यादा सेल आ रहा है, फिर ये जो बड़े बड़े बबल हैं यहाँ से सेल्स ज़्यादा आ रहा है, कंट्री वाइज ये बता रहा है, ठीक है, यहाँ से ज़्यादा आ रहा है, ये ज़्यादा है, ये यहाँ पे। तो कोई ऐसे भी होंगे जो बहुत ही थिन होंगे, बहुत ही पतले होंगे, जैसे ये ले लो, ये बंदा, ये है स्वाजीलैंड, पता नहीं क्या है। और भी बहुत सारे थिन थिन यहाँ पे निकल के आ रहे होंगे। यहाँ पे कुछ एक बंदा है जो है लग्जमबर्ग, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा है बिलाइस, ऐसे ही कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये मतलब ये बन के आ रहा है कि किस जगह पे सेल मैप पे एकदम रिफ्लेक्ट कर जाएगा ये। अब मैं अगर लेजेंड भी यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे मैं छोटा सा लेजेंड लेता हूँ, कोई सा जैसे कैटेगरी लेता हूँ, तो ये कलरिंग कर लेगा। देखो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने इसको। ये चाइना में फर्नीचर कैसा हो रहा है, चाइना में टेक्नोलॉजी कैसी हो रही है, और चाइना में ऑफिस सप्लाई का कितना सेल आ रहा है, इसने इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया। तो लीजेंड जैसे भी तुम डालते हो ना, तो सोचो कि वहां पे एक कैटेगोरिकल कॉलम होना चाहिए। क्यों कैटेगोरिकल कॉलम होना चाहिए, और वो भी कैटेगोरिकल कॉलम हो कम कैटेगरी वाला। जैसे मैंने आपसे कहा शुरू में कि देखो यहाँ पे एक मैं बैक टू रिपोर्ट करता हूँ, देखो कुछ मेक सेंस कैसे नहीं करता है कुछ, जैसे मैंने लीजेंड में डाल रखा है क्या, कैटेगरी। अगर मैं सिटी इज ऑल्सो अ लीजेंड, मतलब एक कैटेगोरिकल डेटा है, और और रीजन भी कैटेगोरिकल डेटा है, तो ऐसे कैटेगोरिकल कॉलम जहाँ बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हों, वहाँ से आपको जनरली अच्छी सी मतलब यहाँ तो रीजन ये कम है, 7-8 ही हैं,
अगर मैं लेता हूँ जैसे कस्टमर नेम लेता हूँ, बहुत ज्यादा नेम है कि नहीं, तो ये पहले तो देखो इतना ज्यादा क्लटर्ड बनेगा, तो तुम इससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाल ही नहीं पाओगे सही से। मतलब इतने में इस सारे नाम्स इसने बना लिए हैं। देखो यहाँ पे मैं जैसे हावर कर रहा हूँ, तो ये नाम दे रहा है मुझे, एंथनी है, मतलब इससे कुछ निकल के नहीं आ रहा है। काम विजुअल तो बन रहा है, लेकिन इनसाइट निकल के नहीं आएगा जल्दी से सही से। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब कैटेगोरिकल कॉलम आप चूज करो तो ऐसे कैटेगरीज हो जो कम हो, जो समझने में आसानी हो। क्लियर? बताओ अगर कुछ डाउट है आपको यहाँ पे। वी आर ओपन फॉर 30 सेकेंड। ओके, वर्ल्ड डेटा ठीक है, मतलब मैं लीजेंड के लिए कम कैटेगरी वाले ही ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। हाँ, मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो तुम, ज़्यादा कैटेगरी उसको फिल्टर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर ऐसे वो सेंस बनने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर कुछ ज़्यादा कैटेगरी हो उसे फिल्टर करना है वो भी कर सकते हैं, मैं भी दिखा दूंगा। पर जनरली हम जब भी बनाते हैं तो ऐसे कम कैटेगरी वाले कॉलम्स को उठाते हैं। अगर एक कॉलम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैटेगरिकल कॉलम है, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डाल सकते हो तुम, डाल के तुम विजुअलाइज कर सकते हो। डिपेंड ऑन दी रिक्वायरमेंट। ओके, ऐसे नहीं कि मतलब नहीं कर सकते, टोटल इट्स नॉट लाइक दैट, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड या। फिर कुछ रैंडमली मैं उठाता हूँ यहाँ से। एक होता है लाइन चार्ट। ठीक है, कुछ पॉपुलर चार्ट्स में कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के लिए याद रखो हमेशा एक्स एक्सिस टाइम होना चाहिए। एक्स एक्सिस जो है ना, वो हमेशा से टाइम होना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं है कि मतलब, जनरली उसका रूल ये है कि एक इक्वल इंटरवल वाला हो। मतलब मैं बताता हूँ आपको। तो एक्स एक्सिस में जैसे मैं टाइम देता हूँ यहाँ पे, टाइम टाइम इन द सेंस, टाइम एक्सिस इन द सेंस, वो ईयर हो सकता है, वो मंथ हो सकता है, वो डे हो सकता है, वो आवर हो सकता है, सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, कुछ भी हो टाइम के मतलब वैसा हो। ठीक है, डेट एंड टाइम वाला हो। तो मैं ऑर्डर डेट जो है ना, वो मेरा डेट एंड टाइम है, मैं उठा के एक्स एक्सिस को दे देता हूँ। ठीक है, और वाई एक्सिस में आप न्यूमेरिकल रखो, फिर जैसे सेल्स रखते हैं। क्या निकल के आ रहा है कि 2012 से 2015 का ये मेरा डेटा है सुपर स्टोर का। मैं देखता हूँ कि 2012 में मेरा जो टोटल सेल था वो 2 मिलियन था। 2013 आते आते वो थोड़ा अपवर्ड्स ट्रेंड्स लिया और उसने मतलब क्लोज टू 3 मिलियन उसका ये हो गया। फिर यहाँ पे 2014 आते आते मेरा सेल क्लोज टू 4 मिलियन हुआ। एंड 15 में मेरा सेल हुआ क्लोज टू 4.5 और 4.2 मिलियन। तो ओवर द टाइम, इफ यू वांट टू चेक एनीथिंग, जैसे आप स्टॉक मार्केट का देखते होगे, ऑलवेज एक्स एक्सिस टाइम होता है वहां पे। जो लाइंस आते हैं ना, उसका नीचे वाला हिस्सा ना ऑलवेज टाइम होता है, ऑलवेज। जैसे आप कोई स्टॉक को पकड़ो और आपको समझना है कि मंथ वाइज वो स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है, तो वो तो लाइन ही है, लाइन चार्ट ही है वो भी। और वो कैसे बिहेव कर रहा था, क्या ट्रेंड था, कैसे था।
तो जनरली लाइन चार्ट हम ट्रेंड चेक करने के लिए करते हैं कि ईयर वाइज क्या हो रहा है, मंथ वाइज क्या हो रहा है। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओह सॉरी यार, पता नहीं कैसे ये स्टॉप हो गया था। ठीक है, तो लाइन चार्ट हम कर रहे थे, मैं बता रहा था। तो आपको ये बता रहा था कि एक्स में जो है ना ऑलवेज आप टाइम दो, वाई में एक न्यूमेरिकल दो यहाँ पे लाइन। ओके, अब जैसे ईयर वाइज क्या हो रहा है सेल्स। ठीक है, अगर तुमको सिर्फ यहाँ पे जैसे मैं ईयर को हटा देता हूँ, क्वार्टर वाइज चेक करना है, क्वार्टर क्वार्टर हटा देता हूँ, मंथ वाइज चेक करना है तो मंथ वाइज निकल के आएगा। मतलब मेक सेंस करना चाहिए। ओके, डे वाइज देखना चाहता हूँ तो डे वाइज निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और जब एक्स एक्सिस पे आप ऑर्डर दोगे ना तो एक डेट हायरार्की बोल के एक ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करोगे सारे डेट्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, मुझे नहीं रखना ये सारी चीज़ें, सिर्फ ईयर रखना है तो आप ईयर भी रख सकते हो। सेकेंडरी वाई एक्सिस क्या होती है कि दो, अगर आप कंपेयर करना चाहते हो सेल्स और प्रॉफिट को भी कंपेयर करना, सेकेंडरी वाई एक्सिस में भी आप एक न्यूमेरिकल कॉलम ही दो, उठा के वाई प्रॉफिट रखो। तो सेल्स और प्रॉफिट कैसे काम, कैसे ऑलमोस्ट सिमिलर फैशन में है। सेल इतना था तो प्रॉफिट ऐसे वो निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तो सेकेंडरी वाई एक्सिस। लीजेंड अगर आपको करना है तो सेकेंडरी वाई एक्सिस नहीं देना होगा, पहले आपको सिंगल सिंगल पे लीजेंड करना होगा, क्योंकि दो दो पे रहेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आई विल जस्ट पिक अप कैटेगरी एंड ड्रॉप इट इन द लीजेंड। तो मतलब यहाँ पे मेरा 2012 में टेक्नोलॉजी में कैसा सेल रहा, ऑफिस सप्लाई में कैसा रहा और फर्नीचर में कैसा रहा, 2013 में कैसा हुआ, 14 में कैसा हुआ, 15 में कैसा हुआ। ठीक है, तो कोई सा भी न्यूमेरिकल कॉलम एक पकड़ के आप शुरू कर सकते हो। इस तरह आप विजुअल्स बना सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं हम। इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ लेट मी नो, वी हैव another couple of minutes more here। आप पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चन हैं तो रिगार्डिंग टुडेज सेशन। किसी को ड्रॉप करना है ड्रॉप कर सकते हैं, मैं भी ड्रॉप ही कर रहा हूँ आई मीन मतलब किसी का क्वेश्चन नहीं है तो वो निकल सकते हैं, मतलब जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर कोई क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा, हम इस कॉल को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हैप्पी वीक अहेड, मतलब नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय।